Good morning, student. This is Snelata Dubey and welcome in my English class. Today we will discuss about the paper pattern. We have this paper, a particular university, paper of BCom second year. But as we know, there is no matter of languages, there is whether BCom, BA or BSc. So this is a BCom second year examination of last year 18 and 19. But this is a paper of private students. So for private student the marking is 35, overall 35 marking, and for regular student as you are this is a 30 marks. मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये पेपर प्राइवेट स्टूडेंट्स का है, तो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए 35 मार्क्स का थ्योरिटिकल पेपर होता है जो कि FC2 है, बट रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए यही पेपर 30 मार्क्स का होगा बिकॉज आपके 5 मार्क्स इंटरनल मार्क्स के होंगे. सो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए बिकॉज आप सेकेंड ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर पैटर्न भी आपको पता होगा. अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके के होंगे. सबसे पहले आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स होंगे. अटेम्प्ट एनी 4 फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ अ 4 मार्क्स. वेरियस चैप्टर्स ग्रामेटिकल पार्ट से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि 4 मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स ईच. नंबर 1, व्हाट डज द वर्ड विस्पर मीन इन द पोएम ट्री. ये क्वेश्चन आपको पोएम ट्री से लिया गया है. सो क्लियर, ऑब्जेक्टिव्स आपको अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं. आज हम यहाँ पे आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे, वी ओनली फ्रॉम द क्वेश्चन डिस्कशन. इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन. दिस इज ऑल्सो अ सेकेंड पोएम of your syllabus. There is also 4 answers alternatives. Next, who has translated the story Eidgah of Prem Chand. This is a chapter of Eidgah. Here is also 4 alternative answers. Next, the artificial tree is as good as a real one. You have to select true or false. Next, differences of the words some and some in word sentences. आपको एक शब्द में डिफरेंस बताना है, एक सेंटेंस में आपको डिफरेंस बताना है सम और सम में. नेक्स्ट, मीनिंग of course is ill feeling or expression of wish of misfortune. This is also a short answer. Next, means here you have to clear this 6 objectives and you have to attempt 4 only. फर्स्ट सेक्शन जिसको हम कह सकते हैं उसमें आपको 6 ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं और आपको जिसमें अटेम्प्ट करने होंगे 4, और ये 4 मार्क्स का ही आपको क्वेश्चन है. नेक्स्ट हम सेक्शन 2 देखते हैं या सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. हियर लिटिल बिट लॉन्ग क्वेश्चंस. अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग द क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस आपको सभी चैप्टर्स पोएम इंक्लूड है इसमें से लिए गए हैं और ये आपको 6 मार्क्स के हैं. 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं. ईच क्वेश्चन हैव 2 marks. Number 1, how do the tree sing? Second, what was the mother reaction to the scorpion's bite? Next, why did the grandmother cry in the end? Next, why did Lancho write a letter to God? Next, what do you think the writer tries to teach us? And next and last, why did the author decide to open an account?
These are also 6 questions and you have to attempt any 3 which have 2 marks. These all 6 questions from various chapters and poem. ये सभी 6 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर्स और पोयम से हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी गो थ्रू सेक्शन 3 और थर्ड क्वेश्चन. हियर इज ऑल ग्रामेटिकल पोर्शन. डू एज डायरेक्टेड. 8 मार्क्स में आपको डू एज डायरेक्टेड होगा जिसमें सारी ओवरऑल ग्रामर इंक्लूड होगी. नंबर 1, he finished his work yesterday. You have to correct tense. आपको करेक्ट टेंस का यहाँ यूज़ करना है. नेक्स्ट, sitting dash the floor is not very comfortable. Here you have to use preposition. Next, there is dash university in Indore. Here you have to use article. There is no option of article, means you have to put a, an or the, which is suitable here. Clear? Next we go through freedom is my birthright. Here you have to find out the noun. Crocodile tears. This is a phrase. You have to give the meaning of this phrase or idioms. Time and tide wait for no man. You have to meaning this proverb. Next, I harmed dash. You have to use reflexive pronoun here. Next, he lived in the town since 1964. Again you have to use here correct tense. Next, let you and I do it together. This sentence you have to correct. Minor mistake here. Next, one should help his friend in difficulty. Correct the sentence again. So this is all 10 questions objectives which you have to do in the form of do as directed. यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्व करने के लिए, जिसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं. ईच है 1 मार्क्स, मीन्स 8 मार्क्स का थर्ड क्वेश्चन होगा. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक. यहाँ 6 मार्क्स में आपको पैराग्राफ राइटिंग अटेम्प्ट करनी है. ऑप्शंस आर 1, द नीड ऑफ स्मॉल फैमिलीज, caring for the elderly, unemployment in India. These are the 3 topics you have to attempt any one for 6 marks. We go for next. Here option also इसी क्वेश्चन में, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 में आपको या तो पैराग्राफ राइटिंग को अटेम्प्ट करना होगा, अदरवाइज आपको इसमें लेटर राइटिंग को करना होगा. ऑप्शन आर हियर. Write a letter to your father informing him of home, or write a letter to your brother inviting him on your birthday. This is also 6 marks. आपको या तो पैराग्राफ अटेम्प्ट करना होगा या लेटर राइटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी. यहाँ 6 मार्क्स के 2 पैसेज दिए गए हैं. 1, यू हैव टू अटेम्प्ट मीन्स ट्रांसलेट इनटू हिंदी. इंग्लिश के पैराग्राफ को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है. एंड सेकेंड बी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश. यहाँ पे हिंदी का एक पैराग्राफ दिया है जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. ये 5 मार्क्स और 6 मार्क्स के एक्सरसाइज हैं, मीन्स इट अ पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन. सो आप, आई होप इसको ये आपको हेल्प करेगा. आपको पेपर पैटर्न फर्स्ट ईयर के जैसा ही है, बट ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे. आज की क्लास में हम सिर्फ पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी देखेंगे विच हेल्प यू. वी हैव अनदर क्वेश्चन पेपर ऑल्सो.
ये आपको एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का था, ऐसे ही कुछ दूसरे क्वेश्चन पेपर भी हैं जो आपको हेल्प करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग. टेक केयर.